Hello students, in this video lecture we will study particular integrals of linear differential equation with constant coefficients. Last video lecture में हमने complementary function निकालना सीख लिया था and in this video we will learn how to find particular integrals which in shortcut it is also denoted by pi. It is also written like this pi, okay? Particular integrals are also called particular solutions. So in some books you will find that पर्टिकुलर इंटीग्रल की जगह हो सकता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा हो. ओके, सो बिफोर आई टेल यू हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ व्हाट डू वी मीन बाय पर्टिकुलर इंटीग्रल्स. ओके, सो वी आर स्टडिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में दैट एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE with constant coefficient can be written like this. Okay, for example, suppose we have this. This is a linear differential equation with constant coefficient of second order. So this can be written like this: d square plus 5d plus 3y is equal to e to the power 3x. So here q is e to the power 3x. Here q is any function of x. Okay, q, or you can write like qx. So qx or q is any function of x or constant. So in this differential equation, q is this e to the power 3x and fd is this function of d. Okay, where we know that d is d by dx and so on. Okay, d2 is d2 by dx square and so on. So what is, suppose this is differential equation 1. Okay, now particular integral of this differential equation 1 is this 1 upon fd of q or qx, 1 upon fd of q. Now what do we mean by 1 upon fd of q? So let's understand this. 1 upon fd by q means, सपोज यहाँ पे आपको कोई q फंक्शन दे रखा है एंड आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताओ 1 अपॉन एफ टी ऑफ q. दैट मीन्स कि ऐसा क्या फंक्शन है x का जिस पर हम जब एफ डी ऑपरेट करें और q आ जाए. ओके, सो द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एफ डी ऑफ q इज सम फंक्शन ऑफ x हियर. यहाँ पे क्या रखें जिस पर हम एफ डी ऑपरेट करें और q आ जाए. फॉर एग्जाम्पल 1 up, suppose if I ask you, just a minute, if I ask you 1 upon, suppose fd की जगह मैं d plus 1 ले लेता हूँ सपोज. ठीक है, q की जगह मैं ले लेता हूँ e to the power 3x. so the question is find the value of this. that means यहाँ पर मैं क्या रखूँ, कौन सा फंक्शन ऑफ x रखूँ जिस पर मैं d plus 1 ऑपरेट करूँ और e to the power 3x आ जाए. ठीक है, सो d plus 1 को किस पर ऑपरेट करने पर e to the power 3x आता है वो हमें पता करना है. So the answer is, just a minute, answer is e to the power 3x upon 4. So let's check it, किसकी वैल्यू कितनी आ रही है. ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 1 upon 4 तो कांस्टेंट है, so we can take it outside. So this becomes this, and here this becomes d of e to the power 3x. d means d by dx of e to the power 3x, so it becomes this. Okay, plus 1 into e to the power 3x means this. Simplify it, add these, we get 4 e to the power 3x and divide by 4 we get e to the power 3x. So we can see that इस फंक्शन पे t plus 1 ऑपरेट करके इतना आ रहा है. दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो है e to the power 3x upon 4. okay, to the power 3x upon 4. So this was the meaning of 1 upon fdq. But the question is, how do I know that d plus 1 जब हम इस पर ऑपरेट करेंगे तो ये आने वाला है? Because I know the formula. I know this formula that 1 upon ft of e to the power ax is equal to 1 upon fa e to the power ax. Okay, where fa means
we will replace d by a in this function. So इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग q के लिए, फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन q वाज e टू द पावर 3x. ओके, सो हो सकता है q sin 3x होता है, या फिर यहाँ पे cos 3x होता है, या कुछ और होता है. तो क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, अलग अलग टाइप्स के लिए 1/f(d)q के लिए फार्मूलाज पढ़ेंगे हम बहुत सारे, और उन फार्मूलाज को याद करके आपको क्वेश्चंस करने हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकालने हैं. दैट इज़ वेरी इजी. So let's study with type A, type 1, particular integrals of type 1, which is this, when q is e to the power ax. So let's understand this. This is here, okay, to evaluate 1/fd e to the power ax. So यहाँ पर q ये लिए मैंने, so ये type 1 है basically, ये समझ लीजिए, type 1. So for type 1, or you can say case 1, we have this formula which is highlighted here, that 1/fd of e to the power ax will be 1/fa of e to the power ax if fa is not 0. Okay, if fa is not 0, because if fa is 0, then 1/0 is undefined. Okay, so let's understand this type 1 question by this example. Find this, solve the following equation this. Okay, and we know that the general solution of this differential equation will be y is equal to CF plus PI. CF, how to find CF? We already know that. So we will not find CF in this video. So CF यहाँ पे इसने solve भी कर रखा है. You can easily see that. Auxiliary equation ये लिखी हुई है, इसके roots 1 और 2 आए. So from here we get CF is this. Okay. So let's focus on PI. PI हो जाएगा 1/FD. FD हमारा ये था question में. You can see this. This is FD. So 1/FD of e to the power this was Q. Okay. So e to the power 5x and ऑपरेटेड बाई 1/this. तो ये एक ऑपरेटर है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. सो दिस इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है, आपको डी की जगह पे ए रखना है. एंड व्हाट इज ए हियर? दिस इज ए 5. सो डी की जगह 5 रख दीजिए. 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, ये हो गया 1/12. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी आई. ओके, सो what do we mean by this? एंड 1/ इतना करके 1/this जब ऑपरेट कर रहे हैं की पावर 5x पे, तो ये आ रहा है. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट जब आप इस पर 1/12 की पावर 5x पर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ये ऑपरेट करेंगे इस पे, तो ये आ जाएगा की पावर 5x. कैसे ऑपरेट करेंगे? डी स्क्वायर ऑफ दिस, विच मीन्स 2 बार डिफरेंशिएट करना है, माइनस 3 इंटू डी ऑफ दिस प्लस 1 इंटू दिस. ओके, एनीवेज, तो हमको तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये जो आ गई 1/12 इतना, तो ये पी आई आ गया, सी एफ भी आ रखा है, इनको ऐड कर लीजिए. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन, वाई इज इक्वल टू इतना. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, हियर C1 and C2 are arbitrary constant. You can put any real values in place of C1 and C2. Okay, let's do one more question. E to the power minus x. Here q is e to the power minus x. So this was the auxiliary equation. इसके रूट्स निकाले, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं अलग अलग. सो फ्रॉम हियर वी सी दैट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ये हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया हमारा. पहले तो इस इक्वेशन को इन्होंने ऐसे लिखा, डी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू द पावर माइनस एक्स. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/this एफ डी ऑफ ए टू द पावर माइनस एक्स क्यू. ओके, नाउ वी कैन सी दैट what is a here? A is minus 1. Compare this with e to the power ax. You can see that a is minus 1. So to find the value of this, what will we do? We will put t is equal to minus 1 here. Okay, तो minus 1 रख दिया और ये वैल्यू आ गई 1. So e to the power minus x upon 1 is this. So this is the pi. Now add cf and pi, we get this. This is the final general solution, y is equal to now. ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, बहुत सारे अनसॉल्व हैं. ओके, एंड हियर वी हैव सम एक्सरसाइजेस फॉर यू. दिस
कंसिडर दिस थर्ड वन, हियर वी कैन सी दैट क्यू इज दिस माइनस दिस। तो इसमें जो इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 1/d² माइनस 4b+1 of e⁻²x माइनस 1/d² माइनस 4b+1 e⁻−x। इसके लिए अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला, इसके लिए अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, एंड वी विल गेट द पी आई। ओके, सो इसके लिए भी यहाँ पर देखेंगे, इसको पहले एक्सपेंड करेंगे +b² का फॉर्मूला लगा के, एंड देन वी विल डू द सेम। कंसिडर दिस 8th क्वेश्चन। हियर यू कैन सी दैट ये e⁻x फॉर्म में है, ये भी e⁻x फॉर्म में है, यहाँ पर 3 लिखा है। सो दिस 3 कैन बी रिटन एज 3 into e⁻0x, because e⁻0x is e⁻0 which means 1। तो यहाँ पर ये भी e⁻ax जैसा बन गया है with a is equal to 0, and here a is -1, here a is 2। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। नाउ वी मूव टाइप 2। ओके, सो सॉरी, दिस इज नॉट टाइप 2, अभी वो टाइप 1 ही चल रहा है बेसिकली, व्हेन q इज e⁻ax। बट इस केस में हम देखेंगे कि how to find the value of 1/fd e⁻ax when fa is 0। ओके, द प्रीवियस फार्मूला जो अभी अभी हमने देखा उसमें fa 0 नहीं था। ओके, बट व्हाट इफ fa is 0? तो यहाँ पे कुछ लिखा है इन्होंने, बट let me give you a quick formula for this। Value of 1/fd e⁻ax if fa is 0 will be this e⁻ax into x⁴n upon factorial n। Okay, so this formula works if fa is 0। Remember this formula, okay, which is very easy to remember। Just put e⁻ax as it is, and then put x⁴n where n is, okay, what is n here? Oh, okay, just minutes, there was a small mistake here, this should be d minus a⁴n, yeah। So this is the formula, 1/d minus a⁴n e⁻ax will be this। Now we don't need this। okay, this is the formula जो इस केस में आपको काम आएगा। जब भी आपको fa 0 मिलेगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। how to use this formula, we will see this now। and let's consider this question। this is the differential equation, d² plus 4d plus 4, ये हमारा fd है। ओके, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पी आई इज इक्वल टू 1/d+2 होल स्क्वायर, ये t+2 होल स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे देख लीजिए, ये d² plus 4d+2 y इज इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक 2x। 2 sin हाइपरबोलिक 2x को हम लिख सकते हैं e⁻2x माइनस e⁻−2x अपॉन 2, राइट? यप, ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा q बन गया है, एंड दिस इज fd, एंड दिस fd कैन बी रिटन एज d+2 होल स्क्वायर। ओके, सो वी गेट पी आई इज इक्वल टू दिस। नाउ ये दो फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा, 1/this ऑफ e⁻2x माइनस 1/this ऑफ e⁻−2x। नाउ सी, जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, बिकॉज यहाँ पर हम जब d की जगह पे 2 रख रहे हैं तो ये 0 नहीं हो रहा है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पे काम हो जाएगा, जो 1/fd ऑफ e⁻ax इज इक्वल टू 1/fa e⁻ax, ये वाला फॉर्मूला। जस्ट पुट, इसके लिए तो just put d is equal to 2। okay, so we get this e⁻2x upon 16। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी वैल्यू। नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पर आप ये देख सकते हैं व्हाट इज a हियर, a इज -2, बट अगर आप b की जगह -2 यहाँ रखते हो तो ये 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसके लिए देखिए इन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ कर रखा है, बट हम आप यहाँ से सीधा यहाँ आ सकते हैं। ओके, ये इग्नोर दिस,
because just remember this formula. Or where is the formula? This. Okay, 1 upon d minus a e to the power ax and d minus a power n. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे e की पावर -2x है, a की जगह -2 है, ओके, a की जगह पे यहाँ पे -2 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, a की जगह -2 रख लीजिए, तो ये हो गया d प्लस 2 की पावर n. ठीक है, कंपेयर दिस विद दिस, यू कैन सी दैट n की जगह क्या है, 2 है, दिस इज n. ओके, सो ये फॉर्मूला n की जगह 2 है हमारा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ax x टू द पावर n हमारा 2 है अपॉन 2 फैक्टोरियल. ओके, e टू द पावर ax x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इज 2. ये हो गया वैल्यू e टू द पावर ax x स्क्वायर बाई 2, विच यू कैन सी हियर. सॉरी, यहाँ पे ये -2x भी है, -2x होना चाहिए इसे, तो e टू द पावर -2x को ऐसे ही लिखना है जैसे है. ओके, सो दिस इज e टू द पावर -2x x स्क्वायर अपॉन 2, e टू द पावर -2x x स्क्वायर अपॉन. ठीक है, ये जो माइनस है ये वाला है. सो यहाँ पे इन्होंने कुछ और ही टेक्निक्स शायद यूज की है, बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ऑलवेज remember this formula, very very important. So with by the use of this formula you can easily get the value of this. ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम. ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे सी एफ निकाल रखा है, पी आई हो जाएगा हमारा 1 अपॉन दिस ऑफ e टू द पावर -x. इन्होंने d प्लस 1 की जगह बेसिकली सीधा इसको a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज कर रखा है, विच इज़ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ठीक है, तो इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखना ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं d की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला? वी कैन सी दैट व्हाट इज a is -1. Okay, the value of this will be e to the power -x into x to the power n. N is 3 here upon factorial 3. Okay, which is this. So using our formula, you can just write that this is equal to this. ये सब करने की जरूरत नहीं है. Okay. Okay, let's see one more. So let me solve the question 4 for you. For this pi ही निकालूंगा मैं यहाँ पे. pi will be 1 upon d minus 1 cube into d plus 1 of e to the power x and plus 1 upon d minus 1 cube d plus 1 e to the power minus x. Okay, now see, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो जस्ट अ मिनट, ये जो लिखा है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज 1 अपॉन दिस इनटू 1 अपॉन दिस. दो ऑपरेटर हैं, एक है 1 अपॉन डी प्लस 1, एक है 1 अपॉन डी माइनस 1 क्यूब. दो ऑपरेटर इस पे ऑपरेट हो रहे हैं. आप चाहे तो 1 अपॉन डी प्लस 1 को इस पर ऑपरेट कर लीजिए पहले, या इसको ऑपरेट कर लीजिए. नाउ वी कैन सी दैट अगर यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, 1 है, या वी हैव ए टू द पावर 1x, तो ए दिस इज ए इज 1. अगर आप डी की जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 हो जाएगा, बट यहाँ पे 0 हो जाएगा. दैट मीन्स 1 अपॉन डी माइनस 1 क्यूब. इस इस ऑप इस ऑपरेटर को कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, तो आप पहले 1 अपॉन डी प्लस 1 को ऑपरेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप इसको लास्ट से भी कर सकते हैं. ओके, बट सपोज 1 अपॉन डी प्लस 1 हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन डी माइनस 1 क्यूब को ऐसे रहने दीजिए, एंड द वैल्यू ऑफ दिस विल बी व्हाट, e टू द पावर, सॉरी 1 अपॉन डी की जगह क्या रखना है, ए, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, e टू द पावर x. तो पहले सी की वैल्यू निकाल देते. ठीक है, तो ये 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, सो दिस बिकम दिस. नाउ a इज़ 1, सो यहाँ पे 1 हमने रख नहीं सकते बिकॉज ये 0 हो जा रहा है. तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे विच वॉज 1 अपॉन डी माइनस ए टू द पावर n e टू द पावर ax इज e टू द पावर ax इंटू x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n.
यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन सी दैट इस फॉर्मूले में n की जगह 3 है और a की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये हो गया इसकी वैल्यू। फैक्टोरियल 3 मीन 6 इंटू 2 12, 1 अपॉन 12 e टू द पावर x इंटू एक्स क्यूब। सिमिलरली you can find the value of this, so this will be what 1 upon, यहाँ पे देखिएगा आप a की जगह पे यहाँ पे -1 है, here a is -1, so a is -1 रखने पर d+1 वाला फैक्टर 0 हो रहा है, लेकिन ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो रहा है, तो d+1 वाला हम लास्ट में यूज करेंगे। पहले d-1 क्यूब इसको ऑपरेट कर लेते हैं इस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d+1 को ऐसे रहने दीजिए, एंड ये हो जाएगा t की जगह पे -1 रख दीजिए, -1 इंटू -1 पावर 3, दैट मीन्स -2 पावर 3, दैट मीन्स -8, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -8 टू द पावर -x, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 8, कॉन्स्टेंट है r आ जाएगा, d+1 e टू द पावर -x, okay, now -1 upon 8, and how will you find the value of this? Using this, here we have n is equal to 1 and a is equal to -1, so this will be this next to the power 1 upon factorial 1, तो इतना हो गया है। Okay, so this is the answer, this is the pi, यहाँ से लेके यहाँ तक। So we have some exercises for you, remember अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, e to the power 3x plus e to the power -3x upon 2 में, and similarly you can do other questions also. सो इस टाइप के लिए जो टाइप 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, नाउ वी गोज टू टाइप 2। टाइप 2 प्रॉब्लम्स आर व्हेन q इज sin ax और cos ax where a is any constant. So let's understand how to solve these kind of problems. ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर, नॉट 1 अपॉन एफ डी। रिमेंबर दिस ऑलवेज। यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए जो फॉर्मूला होते हैं हमारे, उसमें यहाँ पे एफ टी की जगह एफ डी स्क्वायर रखना है। ओके, सो 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर, अब साइन एक्स हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, और डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से। रिमेंबर, सॉरी, ऑलवेज रिमेंबर, टी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। ऑलवेज नोट दैट दिस इज नॉट माइनस ए होल स्क्वायर, दिस एंड दिस, these two are different. Okay, for example, -5 square is 25, but minus of 5 square is -25. ठीक है, सो यहाँ पे भी ये माइनस ए होल स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर केवल ए का है, माइनस ए का नहीं। ओके, सो डी स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना है एफ डी स्क्वायर में, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, वेयर ए इज व्हाट दिस, और यहाँ पे साइन एक्स देना है। सिमिलर फॉर्मूला इज फॉर कॉस एक्स, अगर यहाँ पे साइन एक्स की जगह कॉस एक्स भी होता तो ये हो जाता है कि 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। ओके, बिफोर वी गो टू प्रॉब्लम्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इस फॉर्मूले में जैसे क्यू इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स टाइप 1 वाला था, उसमें 2 केस हुए थे, यहाँ पे भी 2 केस होने वाले हैं, बिकॉज you can ask that what if f of minus a square is 0, तो 1 upon 0 डिफाइन नहीं होगा, राइट। सो दिस फॉर्मूला इज वैलिड if f of minus a square is not 0। अगर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पर ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। बट व्हाट इफ एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज 0, अगर ये 0 हो गया तो हम उसको अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल हम वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो है 0 नहीं हो रहा है। तो लेट्स कंसिडर दिस, ये आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है कि क्यू है हमारा, सी एफ ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पी आई इज 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 साइन 2x। ओके, तो ये साइन एक्स वाला एग्जाम्पल है। ए हमारा यहाँ पे क्या है 2। ओके, सो अभी क्या करना है, टी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, ए है 2,
डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ टू स्क्वायर से, दैट मीन्स डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा -4 से। तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ पे देख सकते हैं -4 रख दिया है इन्होंने, ये -4 है। डी की जगह पे कुछ नहीं रखना है, डी की जगह पे -4 नहीं रखना है, केवल जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है। अगर सपोज यहाँ पे डी की पावर 4 होता तो इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर की पावर 2, और फिर हम डी स्क्वायर की जगह रख देते हैं -4 स्क्वायर। ओके, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी डी को कुछ नहीं करना है, डी को ऐसे रहने देना है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा -4 + 1 -3, d-3 हो गया। नाउ वी हैव दिस 1/d-3 ऑफ sin 2x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए डी की जगह पे तो हम -2 स्क्वायर रख नहीं सकते, तो यहाँ पर इस केस में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह इसके कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर d-3 है तो d+3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में ये हो जाएगा और नीचे हो जाएगा इतना a-b × a+b टाइप। ठीक है, तो d-3 × d+3 हो जाएगा d² - 3 स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये जो है बेसिकली ये दो ऑपरेटर्स अप्लाई किए जा रहे हैं sin 2x पे, एक है d+3 और एक है d² - 9, इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है, दिस वे। सो आप चाहे पहले d+3 ऑपरेट कर लीजिए sin 2x पे, या आप 1/, ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट कर लीजिए। तो सपोज हम यही वाला ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। नाउ कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, सिमिलरली डी स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है -a² से, मतलब डी स्क्वायर की जगह फिर से -4 आएगा, तो ये मैंने रख दिया -4 - 9। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा हो गया, डी स्क्वायर की जगह रखना -4, तो ये -13 हो गया sin 2x। ओके, -1/30 इज कांस्टेंट, 13 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ये हो गया d+3 ऑफ sin x, sin 2x। अब d+3 को ऑपरेट कीजिए यहाँ पे, पहले d ऑफ दिस, मतलब d of this means, so this becomes -1/13, this becomes this, okay, d of sin 2x plus 3 of sin 2x, d of sin 2x means d/dx of sin 2x, जो कि हो गया, अब ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो next question, okay, this is the next question, this is the given differential equation, pi will be 1/this cos 2x। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ही जगह पे 2 है, सो ये लिखा है यहाँ पे डी स्क्वायर को हमें -2 मतलब -4 से रिप्लेस करना है। तो डी स्क्वायर बन गया हमारा -4, डी को कुछ नहीं करना है, डी क्यूब, यस डी क्यूब क्या लिख सकते हैं, देखिए डी क्यूब हो जाएगा d² × d। ओके, और डी स्क्वायर को रखना है आपको -4, तो ये हो गया -4d, तो ये -4d आ गया। अगर यहाँ पे सपोज डी की पावर 5 होता तो आप क्या करते, डी की पावर 5 मीन्स दिस। ठीक है, यहाँ पे एक कह लीजिए डी की पावर 5 इज d² × d², डी स्क्वायर की जगह रखना था -4, तो ये हो जाता है 16d। ठीक है, ओवरऑल ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में टी आएगा और कांस्टेंट टर्म आएंगे। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई किया और -5 कॉमन ले लिया, सो वी गेट दिस। नाउ आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया 1/d+1 ऑफ दिस, तो आप ऊपर और नीचे दोनों जगह d-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद 1/d² - 1 ऑफ cos 2x हो जाएगा, उसमें डी स्क्वायर की जगह पे आप फिर से -4 रख देंगे, तो ये ऐसे हो गया। एंड लास्ट में हम d-1 ऑपरेट कर देंगे cos 2x पे, तो ये इतना हो जाए। दिस इज द PI। So we have some exercises here, you can solve these exercises yourself. Answers are also given here, these are the answers। Okay, now we will see some examples of type 2 जहाँ पर f of -a² 0 हो रहा है। ओके, इसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर ये होता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/d² + a² of sin ax is equal to something, and 1/d²
प्लस ए स्क्वायर ऑफ कॉस ए एक्स इक्वल समथिंग। इसकी वैल्यू होती है एक्स अपॉन टू इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू भी वही वही सिमिलर सिमिलर फॉर्मूला है, एक्स अपॉन टू इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। when f of minus a square is 0 and when q is sin ax or cos ax। ठीक है, let's understand this with examples। ओके, सो फॉर्मूला ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए 1/d² प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/d² प्लस ए स्क्वायर ऑफ cos 2ax इज x/2 a sin ax। तो बेसिकली यही है, x/2 इंटीग्रल cos ax dx। इंटीग्रल फॉर्म में अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान है याद रखना। जब आप cos ax का इंटीग्रल करोगे तो वो हो जाएगा sin x अपॉन a, तो यही बन जाएगी। ठीक है, तो ये सिमिलरली 1/d² प्लस ए स्क्वायर ऑफ sin ax इज x/2 इंटीग्रल ऑफ sin ax dx। ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए पी आई हमारा 1/d² प्लस 4 cos 2x प्लस साइन, ये cos 2x प्लस साइन 2x है। ठीक है, सो इन्होंने कुछ और ढंग से किया है बट मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जिसमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको बहुत ईजीली से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/d² प्लस 4 cos 2x प्लस 1/d² प्लस 4 sin 2x। तो अब देखिए, अगर आप डी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे ए क्या है 2, तो अगर आप जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट, जिसकी हमने एक्सरसाइज की थी, वहाँ पर हम डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर रख रहे थे। बट अगर आप डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर या मतलब -4 रखेंगे तो ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। और आप देख सकते हैं, यू कैन कंपेयर दिस विद दिस 1/d² प्लस ए स्क्वायर 1/d² प्लस 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कॉस के साथ ए है तो नीचे ए स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे कॉस के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये हो जाएगा x/2, ये देख सकते हैं कि वैल्यू ये है x/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। वैसे ये इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा 1/d² प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स इज दिस, सो दिस बिकम x/2 इंटीग्रल साइन 2x dx। नाउ इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज cos sin 2x/2, तो ये हो जाएगा x/4 sin 2x। यहाँ पे x/ sin 2x का इंटीग्रल माइनस cos 2x/2, माइनस 2 का 4 हो जाएगा एंड cos 2x। ओके, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर जो आपको यहाँ पीछे यहाँ पे मिल जाएगा, दिस वन। ओके, 1/4 कॉमन ले लिए, 1/4 x/4 कॉमन ले लिए और sin 2x माइनस cos 2x अंदर है ये। सो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही आसान कर देता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए। सो टाइप 2 भी कवर हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि जब क्यूब साइन ए एक्स या कॉस एक्स होता है तो पी आई को कैसे निकाला जाता है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी टाइप 3 एंड टाइप 4 एंड अदर टाइप्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।